Good morning, students. We are going to start with our lecture 35 of concrete technology. So if you remember, last class we have been studying about process of mixing, the types of mixers that can be used while mixing of concrete. Now if you check the next step after mixing, the next step is, what's the next step? Is transportation. यानी कि जब आपकी fresh concrete ready हो चुका है, ठीक है, you have already made your fresh concrete, now it's ready. Now what do you need to do? You need to go and transport it to the place where you are going to place your concrete. जहाँ placing होगा आपका concrete, वहाँ तक आपका concrete को आपको transportation करना है. So basically transportation में there are actually three methods, okay? So now there are three methods that are being opted while transportation of concrete. There are three types. Number one is fully manual. Fully manual यानी कि जहाँ पर हमको man power चाहिए, यहाँ पर no machine but we need man power to do the work. Second is semi manual mode. Here क्या होगा कि थोड़ा सा man power भी चाहिए और थोड़ा सा machine भी होंगे, दोनों होगा. And third one is your fully mechanical mode. इसमें क्या मैन पावर की मतलब मैन पावर देखभाल करने के लिए ज़रूरत है, लेकिन उनको फिजिकली कोई काम करने का ज़रूरत नहीं क्योंकि सब काम मशीन करते हैं, ठीक है. So let us see in fully manual what all comes. Generally, concrete produced by batch mixers is transported by head load in gamelas और इन व्हील बैरोस फॉर स्मॉल वर्क्स. जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, आप कोई भी स्मॉल कंस्ट्रक्शन वर्क में जाओगे तो एक बार आपका फ्रेश कंक्रीट रेडी हो चुका है तो यूजुअली वो लोग क्या यूज़ करते हैं कंक्रीट ट्रांसपोर्ट करने के लिए? ईदर दे यूज़ गमेलास और व्हील बैरोस. This is the gamelas. You must have seen this in construction works. So these are mainly used like there will be laborers who will be transporting concrete using gamelas, or if they don't use this, they will be using wheelbarrows. In this case, care should be taken to see that proper walkways and staging are provided. So here basically पूरे काम जो man power man इंसान करने वाले हैं, तो you should make sure that care should be taken, ठीक है. और जो walkways हैं जहाँ से वॉक करने वाले, जहाँ से वो लोग जिस रास्ते से वो लोग चलने वाले, ट्रांसपोर्ट करने वाले, इट शुड बी क्लियर ऑफ एनी ऑब्स्टैकल्स, ओके, सो दैट द पीपल हु विल बी ट्रांसपोर्टिंग उनको कोई दिक्कत ना आए, फिर कोई एक्सीडेंट ना हो. इसलिए जो एरिया वो लोग यूज़ कर वॉक करेंगे, इट शुड बी क्लियर. Staging are provided for worker to climb safely and comfortably to transport the concrete, okay, from batching mixing plant point to the placing point. तो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जहाँ से आपका मिक्सिंग हो रहा है वहाँ से लेकर जहाँ आपका concrete place होगा वो रास्ता जो है it should be clear of any obstacles and it should be as easy and convenient as possible for the laborers to carry the concrete. The workability and cohesive of the mix will have to be kept to suit the requirement of labor gang and the time required in transporting the mix, ठीक है. तो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि workability और cohesiveness of mix भी उसमें कोई गड़बड़ ना आ जाए, क्योंकि ये जो है पूरे मैन्युअली करने वाले हैं तो कुछ भी हो सकता है. कभी कभी क्या होगा, लेबर ज़्यादा टाइम लेंगे तो क्या हो सकता है वो वाटर जो मिक्सिंग के लिए यूज़ किया था वो थोड़ा ड्राई हो गया होगा, या फिर लेबर की केयरलेसनेस की वजह से वर्केबिलिटी जो है वो कम हो जाएंगे जब तक ट्रांसपोर्ट कर रहा है, या फिर कुछ भी केयरलेस, बिकॉज वट एवर वर्क दैट इज़ डन फुल्ली बाय मैन पावर देयर इज़ हाई रिस्क ऑफ carelessness and there is high chance of error. So ये ना होने के लिए you should make sure that कि कितना टाइम लग रहा है, ठीक है. अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है, फॉर एग्जांपल अब वो लेबर को जहाँ से मिक्स हो रहा है वहाँ से लेकर प्लेसिंग पॉइंट तक जाने में बहुत टाइम लग रहा है, तो उस केस में लेट अस कंसिडर कि बहुत सनी है वेदर, ठीक है. तो उस केस में क्या हो सकता है,
अब ट्रांसपोर्टेशन होने के टाइम में आपके कंक्रीट का जो पानी है वो थोड़ा सूख सकते हैं हीट की वजह से, या फिर उसमें कोई ज़्यादा लंबे रास्ते चलने की वजह से आपके कंक्रीट में सेग्रीगेशन आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब ना होने के लिए आपको प्रॉपर केयर, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन और प्रॉपर एक बार प्रैक्टिस एक बार करनी चाहिए कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, या फिर अगर पानी सूख रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप करेक्शन कर सकते हैं वाटर सीमेंट रेशियो में, थोड़ा सा ज़्यादा पानी आप लगा सकते हैं, सो दैट ये यूजुअली हम करते नहीं, बट जस्ट एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, लाइक एनी टाइप ऑफ करेक्शन दैट वी कैन डू, वी शुड बी डूइंग दैट, ठीक है। सो आपके फुल्ली मैनुअल में ये आते हैं, इधर यू यूज गमेलास और व्हील बैरोज। Then comes the semi-manual mode. Like I just said here, both manpower and machines are required. So here it says the concrete is generally transported horizontally by manual means. Okay, so जहाँ भी horizontal वाला रास्ता है, ठीक है, जहाँ पर straight path है horizontal, वो वाला काम manually यानी कि कोई भी man laborers कर लेंगे, and vertically by means of such as hoist or cranes, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपको हाई राइज बिल्डिंग में कंक्रीट ले आना है, ठीक है, और दूर से ले जा रहा है, लेट अस से हियर, यहाँ कंक्रीट मिक्स हो रहा है और यहाँ आपका बिल्डिंग है, आपको कंक्रीट यहाँ ले जाना है, ठीक है, इस पॉइंट पे ले जाना है। तो आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली मैन पावर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली एनी लेबर, और मैन्युअली हम कैरी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर क्या है, अब इंसान अब ऐसे तो नहीं जा सकते उड़ के ऊपर, तो अब जो वर्टिकली डायरेक्शन के लिए ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए हम मशीन यूज़ करेंगे, सच एज होइस्ट और क्रेन्स। ओके, सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज सेमी मैनुअल मोड। फॉर एग्जाम्पल इफ आई शो यू, सी, अब होइस्ट और क्रेन्स, राइट, दिस आर योर क्रेन्स, ये जस्ट शो, ये तो रेडीमेड वाला कंक्रीट बीम उठा रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है, इट्स जस्ट टू शो दैट दे कैन यूज क्रेन्स टू लिफ्ट द वर्टिकल लोड। ओके, hoist and cranes. Now here also you should make sure that care should be taken to give adequate slopes to the chutes required for unloading the material from hoist to platform. So what is chute? Chute is basically it's a media to transfer your concrete. For example, अभी बोल रहे हैं कि let us say यहाँ आपका कंक्रीट, कभी कभी आपको एक शूट यूज़ करना पड़ता है, लेट अस से आप वर्टिकली आपको नीचे फाउंडेशन के लिए कंक्रीट चाहिए, तो आप सीधा ऊपर से नीचे तो नहीं फेंक सकते ना, मानो यहाँ कंक्रीट प्लेस करना, तो आप सीधा नहीं फेंक सकते, तो क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ शूट्स, ठीक है। तो कंक्रीट यहाँ से पोर करेंगे और वो नीचे जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड शूट्स। ओके, लाइक इट विल बी, आपने देखा होगा कोई भी वो मेटालिक सरफेस होता है, एक प्लेट होता है जहाँ से कंक्रीट पोर होगा, यहाँ से हम कंक्रीट को पोर करेंगे और जहाँ प्लेस करना है वहाँ कंक्रीट पोर हो जाएगा, राइट। तो दिस इज योर शूट। तो अगर आप शूट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉपर स्लोपिंग देना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि बहुत हाई स्लोप दे, हाई स्लोप देगा भी तो क्या होगा, कंक्रीट अगर बहुत हाई स्लोप से नीचे गिरेंगे तो उसमें स्पीड ज़्यादा होगा, तो अगर कंक्रीट में ज़्यादा स्पीड से गिरेंगे तो उसमें डिफेक्ट सच एज सेग्रीगेशन वगैरह होने का चांस होता है, तो इसलिए प्रॉपर स्लोप देनी चाहिए जिसकी वजह से आपके कंक्रीट में कोई भी सेग्रीगेशन, कोई भी वर्केबिलिटी, उसका कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। Many times the worker gets tempted to put additional water in the mix without any consideration of water cement ratio so that concrete flows down easily down the chute. So what it's saying is that कभी-कभी laborers or workers, just to make their work easy, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा है तो वो आसानी से शूट से नीचे गिरेंगे, तो क्या करते हैं, कभी-कभी वो लोग थोड़े ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से कंक्रीट आसानी से गिरे, जो which should not happen because we already know that जो भी वाटर सीमेंट रेशियो हम यूज़ करने वाले हैं, we shouldn't disturb it more or less than 5%। तो ये सब मिस्टेक, ये सब गड़बड़ ना करने के लिए हमें ध्यान रखनी चाहिए।
then comes our mechanical mode of transportation. So here, just like just like it is defined, mechanical mode of transportation means this will be purely done by using machines. ठीक है? So transportations will be mostly done by using all the machines. For example, which machines? Let us see. Like transit mixers. Okay, what is transit mixer? I'm sure you must have seen transit mixer so many times, right? The mixer that is being used to usually transit mixer here we mostly use it to transfer RMC concrete, but then it can be used to transfer fresh concrete also, apart from RMC concrete. Similarly, this is the dumpers. So even like dumpers are not only used to carry aggregates or sand or cement, it's also, even these days, it's also even used to carry fresh concrete. Okay, these for horizontal transportation of concrete, mainly obviously transit mixer, dumpers वगैरह, जहाँ horizontal रास्ता है, मतलब एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन तक जाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. Second is conveyors, concrete pumps. Let me show you. So these are your conveyors and concrete. What is conveyors? I'm sure you must have seen conveyors. Conveyor, like आपको best example आपको airport में भी देखेंगे, जहाँ से आपका लगेज उठता है वहाँ पर आपको ऐसा कन्वेयर दिखता है. आपका बैग आता है, लगेज बैग्स, राइट? तो वो मूव करते रहता है और जब अपना खुद का सामान आते तो हम उठाते, राइट? तो सिमिलरली इवन इन कॉन्क्रीट भी हम कन्वेयर बेल्ट्स यूज़ करते हैं. ठीक है, बट हियर इट्स मेनली यूज टू कैरी कॉन्क्रीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ऑल्सो देयर आर कॉन्क्रीट पम्प्स. ठीक है, कॉन्क्रीट पम्प्स, इसमें क्या होता है, इसमें पूरे पंप वगैरह पूरा रेडी होता है. तो कॉन्क्रीट इसके अंदर होता है, साथों साथ इसके साथ पंप भी होता है. तो ये ट्रांसफ़र करके लेते हैं और जहाँ कॉन्क्रीट को पंप करना है, वहाँ जहाँ प्लेस करना है वहाँ जाएंगे और कॉन्क्रीट को पंप करेंगे. ठीक है, दिस आर ऑल द method. Then there is skip and hoist. Okay, so this is like one of the most widely adopted methods for transporting concrete vertically up for multi-story building construction. Like mainly in India, like in many places this is very widely used. इसको skip and hoist method बोलते हैं. ठीक है, तो concrete जो है वो यहाँ से आएंगे. ठीक है, जहाँ पर जो भी horizontal distance है वो travel करेंगे, और जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए जो ऊपर लेना है उसके लिए दे विल यूज दिस काइंड ऑफ होइस्ट. ओके, उसमें बकेट होगा, उसमें कंक्रीट भर के वो ऊपर ले जाते हैं. दिस इज कॉल्ड स्किप एंड होइस्ट मेथड. ओके, लाइक यू कैन सी दिस काइंड ऑफ हियर, यहाँ से ये ऊपर जाएंगे तो लाइक एट द ग्राउंड लेवल मिक्सर डायरेक्टली फीड्स द स्किप एंड the skip travels up over rails up to the level where concrete is required, just like I said. At that point, the skip discharges the concrete automatically or on manual operation. Okay. Then there is another cableways. These are mainly used for very large construction work such as dam construction. तो आपने देखा होगा उसमें, और कहीं भी जहाँ पर बहुत हाई लेवल पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसके लिए यू नो इट्स वेरी हार्ड टू टेक एनी काइंड ऑफ डंपर्स और एनी स्किप एंड इट्स इवन हार्ड समटाइम्स टू यूज स्किप एंड होइस्ट or any kind of cranes. So in such case we prefer to use cableways. Okay, so concrete, you know how cableways works. So कोई भी height very minimum height से बहुत high level high height तक उसको हम carry कर सकते हैं. Then there is another which is very common, which is being used everywhere these days. It's called agitator trucks. It's almost like that truck only, transit mixers only. ठीक है? So all these are the modern mechanical methods to transport concrete. So now here comes another important point जो कि आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है. That is precautions to be taken in transportation of concrete. Okay, तो जब आप concrete transport कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, कहाँ कहाँ आपको precautions लेना है. Concrete must be placed within a specific time limit. So this is very important. ठीक है, means obviously हाँ हम थोड़ी सी देर, let us say example. ठीक है, यहाँ आपका concrete mix हो रहा है,
मिक्सिंग पॉइंट, लेट अस से यहाँ आपका प्लेसिंग पॉइंट हो रहा है, इस लोकेशन पे आपका कंक्रीट प्लेस हो रहा है। तो अब ये इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जानी चाहिए कंक्रीट, राइट, बट यू शुड मेक श्योर दैट दिस डिस्टेंस इज नॉट सो लॉन्ग इनफ दैट आपकी कंक्रीट जो है प्लेस होने से पहले ही वो हार्ड होना, सेट होना शुरू हो। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, फिर कंक्रीट को प्रॉपर स्ट्रेंथ, डिजायरेबल स्ट्रेंथ नहीं मिल सकता। सो इसीलिए आपका कंक्रीट मिक्सिंग पॉइंट से लेकर प्लेसिंग पॉइंट जो है उसका टाइम जो है वो स्पेसिफिक टाइम लिमिट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना क्या होगा, कंक्रीट सेट होने लगेंगे और उसमें स्ट्रेंथ नहीं आएंगे। सेकेंड पॉइंट, ड्यूरिंग हॉट वेदर एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स concrete must be covered. Okay, that's a common sense thing. Obviously जब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तो आप कंक्रीट को खुले में ट्रांसपोर्ट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज यू नो दैट एवेपोरेशन टेक्स रैपिडली, राइट। तो जिसकी वजह से जो भी पानी हम यूज़ कर रहे हैं मिक्सिंग वो कम पड़ जाएगा, जिसकी वजह से वाटर सीमेंट रेशियो कम आएगा। या फिर स्ट्रॉन्ग विंड्स, जहाँ हवा चल रहा है, बहुत हीट है, तो ऐसी केस में वी शुड प्रेफर टू कवर आवर कंक्रीट properly. If transported in open containers such as trucks, dumpers or gamelas, especially in which cases जहाँ अगर concrete trucks या dumper या gamelas में transfer हो रहा है transport, तो इस केस में you should make sure at least to cover your concrete either by plastic wraps or gunny bags, something which will not let your concrete undergo rapid evaporation or loss of water. Concrete during monsoon period should be protected from water if transported in open containers. Now similarly, जब monsoon period होता है, then you never know when it will start to rain, right? So you should make sure that it should still be covered and be properly protected from extra rainwater getting mixed in your concrete. Last point, contamination of concrete by oil, dirt और wind blown dust must be prevented during transportation. So आपको ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि जब आपके कंक्रीट ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक ऑयल या फिर कोई भी गंदगी, कोई भी एक्स्ट्रा मिट्टी, कोई भी कुछ भी, या फिर डस्ट वगैरह से मिक्स ना होए, क्योंकि दिस आर ऑल गोइंग टू एक्ट एज एन एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज टू कंक्रीट विच विल लेटर हैम्पर योर कंक्रीट स्ट्रेंथ. सो make sure that your concrete is not getting contaminated by any external substances. So that's all in transportation. Now let us start one more thing, okay, that is where while we place our concrete, the most important thing that we need to while placing is to have a proper formwork. ठीक है, it's also called shuttering. If you don't know what formwork is, then I'm sure this is what is called formwork. आपने देखा होगा कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट में जहाँ आपके कंक्रीट प्लेस होंगे तो डायरेक्टली वो कभी भी प्लेस नहीं होता है. ऑब्वियसली उसको एक इसको एक टेम्पररी स्ट्रक्चर दिया होता है, इधर मेड ऑफ वुडन और स्टील से, मेटल से बनाया हुआ एक टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है अकॉर्डिंग टू इट्स डिजायरेबल शेप. फॉर एग्जाम्पल आपको कॉलम बनाना है रेक्टेंगुलर, तो वो रेक्टेंगुलर शेप में होगा. अगर आपको एक सर्कुलर कॉलम बनाना होता तो ये टेम्पररी स्ट्रक्चर एक सर्कुलर शेप में होता. अगर स्लैब बनाना होता तो वो ऐसे वो लोग फॉर्मवर्क देते. तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मवर्क. ठीक है, सो आपने ये देखा ज़रूर होगा बट आपको नहीं पता था कि इसको फॉर्मवर्क बोलते थे, राइट. सो नाउ यू नो इट्स कॉल्ड फॉर्मवर्क. सो वी आर गोइंग टू यूज द वर्ड फॉर्मवर्क henceforth. Okay, so if you define formwork, it's very easy, you don't even need to remember. If you understand, then it's very easy to remember also. Formwork क्या है? It's defined as a complete system of temporary structure. पहला चीज़ क्या है formwork? वो एक temporary structure है. Okay, second point, built to contain fresh concrete. तो वो temporary structure के अंदर हम क्या डालता है? हम डालते हैं फ्रेश कंक्रीट, राइट. तो मेनली क्या है, एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम क्या डालेंगे, कंटेन मतलब उसके अंदर डालना, फ्रेश कंक्रीट डालेंगे. क्यों डालेंगे? सो एज टू फॉर्म इट टू अ रिक्वायर्ड शेप एंड डायमेंशन. क्यों डालेंगे? सो दैट जो भी कंक्रीट, फ्रेश कंक्रीट हम डालेंगे उसका शेप जो है वो रिटेन होने के लिए. फॉर एग्जांपल आपने अभी
रेक्टेंगुलर शेप में कॉलम में डाला, तो जो फ्रेश कंक्रीट अंदर जाएंगे उसका शेप भी तो रेक्टेंगुलर ही आएंगे ना। तो वो एक रिक्वायर्ड शेप देने के लिए और रिक्वायर्ड डायमेंशन देने के लिए, क्योंकि एज पर फॉर्म वर्क हम डायमेंशन दे सकते हैं, राइट। मानो आपने एक कॉलम बनाया जो है लेट अस से 250 बाय 160 mm, ठीक है। तो वो एग्जैक्टली कॉलम मानो आपको बनाना है 250 बाय 160 mm कॉलम, तो आप बना सकते हो ना। आप कैसे बनाओगे? कॉलम के जो फॉर्म वर्क जो यूज़ करेंगे, आप इसका लेंथ एक 250 रखोगे दो साइड पे और दूसरा ऑपोजिट साइड पे 150, तो जो कंक्रीट हम डालेंगे अंदर उसका डायमेंशन भी सेम होगा, राइट। तो क्या है, वो एक रिक्वायर्ड शेप देने के लिए और एक डायमेंशन देने के लिए। एंड टू सपोर्ट इट until it hardens sufficiently to become self-supporting। and lastly क्या है, मेनली एक सपोर्ट देता है जब तक वो हार्ड ना हो जाए। दैट्स ऑब्वियस थिंग, राइट। अगर आपको देखो, अगर आपको कोई रेक्टेंगुलर कॉलम बनाना है, आप बिना फॉर्म वर्क के क्या आप कंक्रीट ऐसे ही आप ढालोगे तो वो रेक्टेंगुलर शेप में आएगा क्या? ऑब्वियसली नहीं आएगा, राइट। इसको प्रॉपर शेप देना ज़रूरी होता है, एक प्रॉपर सपोर्ट देंगे जब तक आपका कंक्रीट हार्ड, जब तक आपका कंक्रीट सेट ना हो तब तक उसको एक टेम्पररी स्ट्रक्चर चाहिए जो उसका शेप रिटेन करके रखेगा, डायमेंशन रिटेन करके रखेगा और उसको सपोर्ट भी देगा। तो उसको हम बोलते हैं फॉर्म वर्क। तो अगर हम इजीली अगर फॉर्म वर्क को डिफाइन करें तो हम क्या बोल सकते हैं? फॉर्म वर्क एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो क्यों बनाया है? जो फ्रेश कंक्रीट को डालने के लिए बनाया है, सो दैट उसमें एक रिक्वायर्ड शेप आए, रिक्वायर्ड डायमेंशन, और वो फ्रेश कंक्रीट को सपोर्ट करे जब तक वो पूरी तरीक़े से हार्ड ना हो जाए। तो वो टेम्पररी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फॉर्म वर्क, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट शटरिंग। ओके, so second point, form work is also known as shuttering, like I just said. Either we refer it as shuttering or we call it form work. The form for casting precast unit is called a mold, ठीक है। और जो फॉर्म हम जहाँ पर कंक्रीट कास्ट करने के लिए ये डाल रहे हैं, ये कंक्रीट जहाँ पर कास्ट होगा, ये जो है आउटसाइड को हम मोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। The part of form work which consists of sheeting and its intermediate supporting or stiffening member is called form. Okay, let us read this. The part of form work which consists of sheeting and its immediate supporting or stiffening member is called form। मतलब कौन सा पार्ट ऑफ फॉर्म वर्क जो शीटिंग और इमीडिएट सपोर्ट देगा। फॉर एग्जांपल जो बाहर से शीटिंग दे रहा है और इमीडिएट सपोर्ट दे रहा है, ये दिख रहा है ना, बाहर से सपोर्ट और स्टिफनिंग मेंबर इज कॉल्ड फॉर्म, ठीक है। द पार्ट ऑफ फॉर्म वर्क विच सपोर्ट्स द फॉर्म यूजुअली फॉर अ लार्ज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फॉल्स वर्क। सॉरी, जो अभी मैंने बताया था ये जो बाहर का शीटिंग है इसको हम फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और फॉर्म को सपोर्ट करने के लिए हमने क्या दिया है, बाहर से एक्सटर्नल सपोर्टिंग दिया है, राइट। ये एक्सटर्नल सपोर्टिंग दिया, यू कैन सी हियर। तो इसको हम बोलते हैं फॉल्स वर्क, ठीक है। तो मेनली टू पार्ट है, एक है जो बाहर का शीटिंग जिसको हम फॉर्म बोलते हैं, जो कंक्रीट को सपोर्ट करने के लिए देता है, और जो फॉर्म को सपोर्ट करने के लिए हम रखते हैं उसको हम बोलते हैं फॉल्स वर्क, ठीक है। नाउ लेट अस सी नेसेसिटी ऑफ फॉर्म वर्क। फॉर्म वर्क क्यों देते हैं अभी हमने पढ़ा, ये आपको पता होगा ऑब्वियसली क्यों, एक रिक्वायर्ड शेप देने के लिए। सेकेंड थिंग, टू इंश्योर स्टेबिलिटी फॉर डेड एंड लाइफ लोड सच एज लोड ऑफ वर्कमैन इक्विपमेंट। थर्ड, टू प्रिवेंट एक्सपोजर टू डायरेक्ट सन रेज और वाटर, ठीक है। जो कॉन्क्रीट हम कास्ट कर रहे हैं उसको एक डायरेक्ट सनरेज और रेन वाटर से भी नहीं आएंगे, क्योंकि देखो अगर कंक्रीट हम इसके अंदर डाल रहे हैं तो बाहर से ये जो स्ट्रक्चर है ये धूप और बारिश से भी प्रोटेक्ट करेंगे। टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ऑब्वियसली अगर वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है बाहर से तो इवेपोरेशन होने से भी रोक सकते हैं। टू इंश्योर ईजी क्योरिंग ऑफ कंक्रीट, ठीक है। सो इवन क्योरिंग करने के लिए भी आसान होगा अगर प्रॉपर फॉर्म वर्क है तो। So like here you can see this is the formwork which is usually made for
column. Either it is either made up of steel, metal, or it's made up of wooden. Similarly, ये जो है ये बाहर, this is the slab formwork. Okay, these are all formwork structures. So we'll keep our lecture till here today. Next class we'll continue with types of formwork. Thank you.